سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سعودی ولی عہد بھی دورہ پاکستان کی خواہش رکھتے ہیں۔ خوشی ہے پاکستان اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب انتہا پسندی کے خاتمے اور اعتدال کے ابلاغ کے پابند ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سعودی ٹی وی کو خصوصی انٹرویو۔ کہا دونوں ممالک دو طرفہ تعلقات کے استحکام کے لیے پرعزم ہیں۔ پاک سعودیہ تعلقات تاریخی، اسٹریٹجک اور ایک دوسرے پر اعتماد پر مبنی ہیں۔ حکومت نے شہباز شریف کی رہائی کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں ہمیں عدالتی فیصلوں پر احترام ہے، مگر اس فیصلے پر ہمارے پاس قانونی حقوق موجود ہیں۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں عدالت کو درست طریقے سے بات بتائی نہیں، عدالتی حکم کے خلاف اپیل کرے گی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ شہباز شریف کرپشن، منی لانڈرنگ اور کک بیکس کیسز کا سامنا کریں۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ 4 ہفتے میں علاج کروا کر واپس آؤں گا۔ شہباز شریف نے نواز شریف کی ضمانت دی تھی۔ نواز شریف کو واپس لانے کے بجائے شہباز شریف نے فرار ہونے کی کوشش کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حقان عباسی کا کہنا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں کہ شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی۔ رنگ برنگے وزیر صرف الزامات لگاتے ہیں۔ لیگی رہنما نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب نے عدالت میں اعتراف کیا کہ شہباز شریف نے کک بیکس نہیں لیے، کرپشن نہیں کی اور غیر قانونی فنڈ سے اثاثے نہیں بنائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں غربت کی شرح میں اضافے کا ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کو قرار دے دیا۔ کہا کہ 30% اضافے کے ساتھ 8.5 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ غریب کا کوئی پرسان حال نہیں۔ الیکشن کمیشن کے الیکٹرانک ووٹنگ آرڈیننس پر تحفظات برقرار۔ اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے متعلق صدارتی آرڈیننس وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کو اعتماد میں لیے بغیر جاری کیا۔ ایف آئی اے دفتر پر لیگی رہنماؤں کا دھاوا۔ کارروائی کے لیے سی سی پی او لاہور کو درخواست۔ لیگی رہنما 10 سے 12 نامعلوم افراد کے ساتھ ایف آئی اے آفس میں زبردستی گھس گئے اور دفاتر کی تلاشی لی گئی۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف پر انتقامی کوشش کے باوجود الزام ثابت نہ ہو سکا۔ احتساب کا ڈرامہ وینٹیلیٹر پر جا چکا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں شاہد حقان عباسی، احسن اقبال اور مریم اورنگزیب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شریف فیملی نے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا ہے۔ شریف فیملی 80 سال سے کاروباری ہے۔ السلام علیکم، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل۔ ہیڈ لائنز اپنے جانب بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کے اعزاز میں بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا تھا اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے مدینہ منورہ آمد کے بعد روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے تو خاتون اول بھی ہمراہ تھی۔ مدینہ منورہ میں ان کا استقبال گورنر مدینہ منورہ امیر فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز نے کیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سعودی ولی عہد بھی دورہ پاکستان کی خواہش رکھتے ہیں۔ خوشی ہے پاکستان اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔
सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से मुताल्लिक़ कहना था कि पाकिस्तान और सऊदीया के 70 साल पर मुहित ताल्लुकात बहुत अहम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे में तिजारत मुआशी ताउन पर तवज्जो मरकूज़ थी। वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने दौरे में मखसूस पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का ऐलान किया था। मज़ीद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक़ इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए अमल पैरा है। दोनों ममालिक माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। खुशी है पाकिस्तान इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। मसले से मुतालिक इस्लामी ममालिक में बातचीत जरूरी है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ OIC का किरदार भी अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने शहबाज शरीफ की रिहाई के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमें अदालती फैसलों पर एहतराम है, मगर इस फैसले पर हमारे पास कानूनी हकूक मौजूद हैं। मुशर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि हम समझते हैं कि अदालत को दुरुस्त तरीके से बात बताई नहीं गई। हुकूमत इस अदालती हुक्म के खिलाफ अपील करेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ के लंदन में 4 अपार्टमेंट्स की मालियत 1 अरब पाउंड है। हमारी किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इमरान खान ने नहीं, पूरी कौम ने लड़नी है। शहबाज शरीफ को बाहर नहीं भेजना चाहते। उनके खिलाफ मुकदमात हतमी नताइज तक पहुँचाएंगे। इस मौका पर मुशर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि शहबाज शरीफ के हवाले से अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने का तासुर गलत है। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म ब्लैक लिस्ट का है, उनका नाम PNI लिस्ट में है। उन्होंने कहा कि अदालती मामलात अदालत में ही तय होंगे। नया वर्किंग डे आया तो अदालती ऑप्शन पर काम करेंगे। जहां चाहिए जाकर टक्कर मारें, ये सबूत खत्म नहीं होंगे। शहजाद अकबर ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग वो नासूर है जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में गुर्बत की शरह में इजाफे का जिम्मेदार PTI हुकूमत को करार दे दिया। कहते हैं 30% इजाफे के साथ 8.5 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के दहाने पर खड़े हैं। गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में यौमिया 15 से 20 अफराद खुदकुशी करके अपनी जिंदगियों का खात्मा कर रहे हैं। उन्होंने खान साहब पर तंज करते हुए कहा कि वजीर आजम साहब अपने ख्याली दुनिया से बाहर आए। अशराफिया के लिए एमनेस्टी स्कीम और गरीबों के लिए लंगर खाने, ऐसे नहीं चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि जब महंगाई की सालाना शरह 14% से तजावुज कर जाएगी तो आम आदमी आखिर कैसे गुजारा करेगा। पाकिस्तान में दवाएं 100% से ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। इमरान खान ने आम आदमी की जेब से 90 अरब रुपए से ज्यादा निकालने के लिए एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने बढ़ती महंगाई पर खतरे की घंटी भी बजाई। कहते हैं ईद के बाद सनती शोबे से 20% मुलाजमीन की नौकरियों से निकाल देने के खदशे ने हकीकत का रूप धारा तो हालात और खराब हो जाएंगे। साबिक गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने दावा करते हुए कहा है कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के आर्टिकल 370 को ख़त्म करने से मसला नहीं है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि शाह महमूद ने आर्टिकल 370 को भारत का अंदरूनी मामला करार दिया है। मोहम्मद जुबैर ने सवाल उठाया कि क्या ये तारीखी यू टर्न है? क्या पाकिस्तान कश्मीर से मुतालिक तारीखी मौक़िफ़ से पीछे हटने पर राजी है? उन्होंने ये भी पूछा कि आर्टिकल 370 के तहत भारत ने कश्मीर को एक यूनियन बनाया जो भारत 1948 से ना कर सका। दहाइयों से जारी पाकिस्तानी मौक़िफ़ खासकर 2019 के बाद जो कुछ हुआ उसका क्या बनेगा? वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत के आर्टिकल 370 से मुतालिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की आर्टिकल 35A को रुकवाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। पाक भारत ताल्लुकात में सऊदी किरदार के हवाले से उनका कहना था कि सऊदी अरब से मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी पर बात नहीं हुई है। आर्टिकल 35A से मुतालिक हिंदुस्तान में जो रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है इस पर तशवीश है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी का कहना है कि कोई सबूत नहीं कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की। रंग बरंगे वजीर सिर्फ इल्जामात लगाते हैं। नैब ने अदालत में इतराफ़ किया कि शहबाज शरीफ ने किकबैक्स नहीं लिए, करप्शन नहीं की और गैर कानूनी फंड से असासे नहीं बनाए। उन्होंने कहा कि कभी साफ पानी तो कभी आशियाना केस। 3 साल से सिर्फ इल्जामात लगाए गए, हकीकत कुछ नहीं। बताया जाए किस जुर्म में लीगी सदर को जेल में डाला गया। करप्शन के सबूत हैं तो सामने लाएं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि माफियाज ताकतवर हैं क्योंकि ये इमरान खान के ATMs हैं। ये गरीबों को लूट कर खुले फिरते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि नैब किसी एक मंसूबे में शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सका। एहतसाब ड्रामा वेंटिलेटर्स पर जा चुका, जल्द दम तोड़ने वाला है।
रावलपिंडी थाना सादकाबाद की हदूद डोक कालाहान में पुलिस गर्दी 2 रोज पहले होने वाले वक़्ए की एफआईआर में नामजद मुलजिम पुलिस की हिरासत में होने के बावजूद एफआईआर में बगैर नामजदगी के दीगर शहरियों के घरों में बगैर लेडी पुलिस सहरी के वक्त छापे तोड़ फोड़ की गई और खातिन के साथ बदसलूकी भी की गई। रावलपिंडी में पुलिस गर्दी उरूज पर 2 रोज पहले होने वाले वक़्ए की एफआईआर में नामजद मुलजिम पुलिस की हिरासत में होने के बावजूद राजा जाहिद महमूद जो कि इस एफआईआर में नामजद भी नहीं के घर और उनके दीगर घरों में बगैर लेडी पुलिस सहरी के वक्त छापे मारे गए। घरों के गेट शीशे और गाड़ियां तोड़ दी गई। खातिन के साथ भी बदसलूकी की गई और उनसे मोबाइल फोन्स तक छीन लिए गए। महज एक नामालूम शख्स जो कि गुज़िश्ता रात मुतल्लिका पुलिस को पेश भी किया गया लेकिन पुलिस उसे लेने से इनकारी हो गई और इसी की तलाश का बहाना बनाते हुए घरों में तोड़ फोड़ की और 2 रोज से 7 से ज्यादा अफराद बगैर किसी मुकदमे में मुलविस किए हुए पुलिस ने अपनी हिरासत में रखे हुए हैं। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस बासर अफराद की आलाकार बनी हुई है। हमें जानबूझकर तंग किया जा रहा है। पुलिस की दावेदार हुकूमत बाज़ाहिर पुलिस के सामने बेबस नजर आती है। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह हुकाम नोटिस लें। यहाँ पे आए हैं, रात को उन्होंने रेड की है, रेड करके दरवाजे तोड़े हैं, ना उनके साथ कोई लेडीज फ्री थी, कैमरे तोड़े हैं, एलसीडी तोड़ी हैं, फ्रिज तोड़े हैं, गाड़ियां तोड़ी हैं, औरतों से मोबाइल छीने हैं, औरतों को मारा है। तो जब सचो के पास जाते हैं वो भी कहते नहीं लूंगा। तो ये हम ये कह रहे हैं कि कौन सी रियासत मदीना है, ये कौन सा कानून है। मुजरम जाके वो देते हैं तो पुलिस वाले लेते नहीं हैं। रात में लोग बंदे सोते हैं, आके दरवाजे तोड़ते हैं, सारे एलसीडियाँ तोड़ते हैं, चरपाइयाँ तोड़ते हैं, गाड़ियों को तोड़ते हैं। 5 बजे आए दूसरी दफा बांध तोड़ करके चले गए। बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। एक जिला रियासत में हमारे साथ ये काम किए, ये हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। पूरी गार्ड पुलिस ने अंदर बड़ी है। 2 बच्चे से मरी हाँ जी उसने मजदूरी मरी 5 जनानी उसकी मारिया ने, फिर सारे बच्चे मारे ने, सारिया चीज़ा मैं ना बोली, मैं मजदूरी मैं ना सब मिकी खींचनी ने आखिर मैं झूठ ना मारनी, उन्हें कुड़ियां ही मारिया ने। कारोबार क्यों खोला? असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल मजीद ज़हरानी का मटियारी शहर में अचानक दौरा, 15 से ज्यादा दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसील मटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में कोरोना वायरस के पेश नज़र सिंध हुकूमत की जानिब से 9 मई से 16 मई तक के लॉकडाउन के बायस असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल मजीद ज़हरानी का शहर में कार्रवाइयाँ, हज़ारों रुपये का SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद। असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल मजीद ज़हरानी बड़ी पुलिस नफरी के हमरा मटियारी शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया। उस दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर मुख्तलिफ मार्केट्स में दुकानदारों के ऊपर जुर्माना आयद कर दिया गया, जबकि दुकानदार ज़ुबैर, इमदाद, अब्दुल रशीद, नदीम, सलीम समेत दीगर दुकानदारों पर जुर्माना लिया गया। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल मजीद ज़हरानी का कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से अंदरून सिंध मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इसके बावजूद मटियारी शहर में शहरियों ने कारोबार खोला गया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और खिलाफ वर्जी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन असदुल्ला मेमन के साथ अली फैजान, मटियारी। सराय आलमगीर राग बबी सरकार बेला और फतेहपुर जंगल के इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन 4 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सराय आलमगीर DPO गुजरात उमर फारूक सलामत की हिदायत पर राग पब्बी सरकार बेला के इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सर्कुलर सराय आलमगीर की पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी शामिल की गई। पुलिस के मुताबिक खतरनाक पब्बी जंगल पहाड़ी इलाके और घने जंगलात पर मुश्तमिल था। पुलिस ने 4 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। DPO गुजरात उमर सलामत ने कहा कि गुजरात में कोई नोगो एरिया नहीं है। जिले को मुजरिमान, इश्तहारियों और जराइम पेशानासे से पाक कर दिया है। राग पब्बी सरकार का रकबा सराय आलमगीर, जेहलम, मंडी बहावलदीन, खारियां और आज़ाद कश्मीर तक फैला हुआ है। मियांवाली SOPs के खिलाफ वर्जी पर 10 मुसाफिर वैन और कोचेस को मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने हिदायत की है कि ईद उल फितर के दौरान ट्रांसपोर्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए।
सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एजाज जोया का लॉकडाउन और SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 10 मुसाफिर वैन और कोचेस को मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया गया। एजाज जोया का कहना है कि ईद उल फितर के दौरान ट्रांसपोर्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। अवामी शिकायत के इजाले के लिए कंप्लेंट सेल कायम कर दिया गया है। ओवर चार्जिंग और किरायानामा अवेजा न करने पर भी कार्रवाई होगी। लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर मामूर मुलाजिमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। मंडी बहाउलदीन में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए 8 मई ता 16 मई जिले भर में मुकम्मल शटर डाउन कर दिया गया है। मासवाए उन कारोबार के जो खुला रहने की इजाजत है। DC तारिक अली बसरा कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के लिए मुकम्मल मुतहरिक हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंडी बहाउलदीन जिले भर में मुकम्मल मॉल्स, मार्केट्स, कारोबारी मराकज़ बंद हैं। मेडिकल स्टोर, एनेक्सास और छोटे करियाना शॉप इजाज़तनामे के तहत काम कर रहे हैं। वहां पर भी लोगों की बहुत कम तादाद नजर आ रही है। DC तारिक अली बसरा का कहना है कि हुकूमती अहकामात की रोशनी में आज से 16 मई तक मुकम्मल SOPs का ख्याल रखा जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। आज भी 30 से ज्यादा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा में रजा और जगन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा फुरकान ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों और मास्क ना पहने कसाईयों का शहरियों पर ज्यादा नर्ख पर गोश्त फरोख्त करने के खिलाफ ग्रैंड क्रैक डाउन। इस हवाले से मजीद जानते हैं नौशहरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाहरुख से। जी शाहरुख, आगाह कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा ओज़गन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा फुरकान ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने और मास्क ना पहनने पर और कसाईयों का शहरियों पर ज़्यादा नर्ख पर गोश्त फरोख्त करने के खिलाफ क्रैकडाउन। इस दौरान 10 अफराद को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और दर्जनों दुकानों जो कि पॉलिसी के खिलाफ खुली थी इनको बंद कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया नौशहरा का मुख्तलिफ बाज़ारों में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने पर 5 शॉप सील कर दिए गए जबकि 10 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरामैन टीम के साथ शाहरुख, चैनल 51 नौशहरा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब रुख करेंगे सैदपुर का, जहां पर लॉकडाउन के बायस टेलर हजरात शदीद परेशान हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन गफ्फार से। जी, क्या तफसीलात हैं मोहसिन आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सैदपुर में लॉकडाउन के बायस दीगर दुकानों के साथ साथ टेलर शॉप्स भी बंद। शॉप बंद होने की वजह से कारोबार मुतासर होने की वजह से टेलर हजरात जो है ना शदीद परेशानी का शिकार हैं। अब ठीक है, बिल्कुल साढ़े सारे कारोबार बिल्कुल पहले भी बंद था, हुण मजीद बंद थी गए। साढ़े कपड़े सीना टाइम कहीं सारे कोल ते कपड़े गाहक चावण की हो सकता, कपड़े गाहक की ॾिसूं। मेहरबानी करे हुकूमत अपील साढ़े ते रिलीफ था वञी सकूं, कारोबार करण जी ॾिठी वञे। साढ़े छोटे बाल हैं कितों कारोबार करे सो अगर लॉकडाउन रहे। टेलर मास्टर और गाहक जो है ना शदीद परेशानी का शिकार हैं। टेलर मास्टर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें कोरोना SOPs के मुताबिक दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। मीठी ईद आते ही सवैयां की मांग में भी इजाफा हो जाता है। अगर बात करें जलालपुर पीरवाला में गंदम के आटे और मैदे से तैयार होने वाले लच्छे वाली सवैयों की, तो जायका और लज्जत में उनका कोई सानी नहीं। इसी हवाले से जलालपुर पीरवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन। मीठी ईद करीब आते ही सिवैयों की मांग में भी इजाफा हो जाता है। और बात करें गंदम, आटे और मैदे से तैयार होने वाली लच्छे वाली सिवैयों की, तो जलालपुर पीरवाला में आज भी पुरानी रिवायात को बरकरार रखते हुए लच्छे वाली सिवैयाँ घरों में तैयार की जाती हैं, जो गंदम के आटे और मैदे को गूंद कर बिल्ले यानी मशीन के मदद से सिवैयों के लच्छे तैयार किए जाते हैं और एक लंबी तार पर उन्हें 6 घंटे तक सुखाया जाता है। फिर उन लच्छों को काट कर पैकेट्स में बंद करके मार्केट में फरोख्त किया जाता है। ये सेवइयाँ तैयार हो रही हैं, ये हम मैदे और गंदम के आटे से मिक्स करके उससे बनाते हैं। इसको पहले हम सारा काम हाथ पे करते थे, अब डिमांड बढ़ने की वजह से इसको हम मशीनों के ज़रिए बनाते हैं। ये लच्छों की सूरत में निकलते हैं और इसको जो है हम 6 घंटे तक धूप में सुखाते हैं, फिर काट के इसको पैकेटों में पैक करके मार्केट में सप्लाई देते हैं। ये ज़ायके और मयार में अपना एक मकाम रखते हैं। ये हमारी एक मकामी सतह पर बहुत खाई जाने वाली स्वीट डिश है। लच्छे वाली सिवैयाँ जायके और लज्जत में बेमिसाल होने के साथ साथ सेहत अफजा भी हैं, जिनकी मांग ईद के मौका पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये लच्छे वाली सेवई हमारे इलाके की सौगात है, जलालपुर पीरवाला की।
और इसे लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। तोहफे तवाइफ के लिए ईद पे इस्तेमाल होती है, ये ईदी लेने देने में इस्तेमाल होती है और शहरी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और आटे और मैदे की बहुत अच्छी क्वालिटी की बनी होती है ये। ईद में ये हम अपनी बहनों को ईद पे भी देते हैं और 12 महीने हम इनका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही लजीज होती हैं, अच्छी होती हैं। ये हमारे जलालपुर की बहुत अच्छी सौगात है, मैदे और आटे से बनती है। लच्छे वाली सिवैयाँ सबकी पसंद होने के साथ साथ उन्हें तैयार करने वालों की मेहनत और लगन भी दीदनी है। कैमरा टीम के हमरा अली हसन, चैनल 51 न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।